Moving to the next session, this is about unlocking the future potential of MSMEs. That is where we look into unlocking their potential by hand-holding them, leveraging on technology, financial help, and bringing forth the micro, the small, and the medium developers as they stand agile, they are entrepreneurial, they are innovative, and in fact, they are artisans, they form the backbone of any sector. So we have this session on unlocking their potential, and I invite the speakers, Mr. Anil Sharma, DGM-SME, State Bank of India, who brings in more the financial hand-holding aspect. May I request you, sir, to please grace the dais. Mr. Rajnish Goenka, the Chairman, TobuCycles, and Founder Chairman, MSME. We have MSME Development Forum. Mr. Amit Kedia, Director, Kedia CorporateAdvisors Private Limited. And the session is going to be moderated by Mr. Tamal Ghosal, the co-chairman of the CREDAI MSME Committee. So, delving into the strategies, the technologies, the financial aid that can actually propel MSMEs towards more sustainable growth and prosperity, and adding on to the transformation of the Tier 2, Tier 3 cities, and overall a Viksit Bharat, a transformed Bharat, a Bharat of our dreams, of the aspirations of 140 crore people. The MSMEs being the artisans, agile, an active role to play. Over to our moderator, Mr. Ghosal. Good afternoon. Hello. Good afternoon, everybody. I think it's been a long day. So many of you have traveled today and come, and we have so much more to go. But still, I think this is a very important session because the MSME sector is the most prized sector in India in terms of the government. The maximum number of benefits which the government wants to give is to the MSMEs. And it's very important how we align our real estate business to the MSME ecosystem. So we have a panel of speakers here. We have Anil Sharma ji from State Bank of India. He looks after MSME in Lucknow. We have Rajnish Goenka ji. He is an iconic personality in the MSME ecosystem in India. He obviously has an industry background and as the founder and chairperson of TobuCycles, which is a household name in India we all are aware of. But more than that, I think he's worked his entire life to improve the ecosystem, an MSME ecosystem. He was our ruling party, BJP's national convener on the MSME cell. And now he is the chairperson of the MSME Forum, which works towards the upliftment of the MSME sector. And we have CA Amit Kedia. He is a chartered accountant who works in various spaces like RERA and others. He will specifically speak on these small REITs, real estate investment trusts, as you are aware of the fact that they were only for 500 crores, but the government has brought in a regulation saying that small REITs can be up to from a minimum value of 50 crores, which we all feel in the real estate that it is going to be a huge game changer for the small and medium businesses. So without much ado, I think I will start. I think Amit has a presentation. So I will start, Amit, with presentation. Amit, I give you 10 minutes for this presentation in paucity of time. Rest we can discuss and talk about. So you would like to go there and do the presentation? Yes. So Amit, you can do the presentation. Good evening, everyone. It was a great privilege to be there at the forum. And when we are talking and thinking about Viksit Bharat in 2047 and seeing and staying in the city of Narendra Modi ji, the constituency of Narendra Modi ji, this could not be a better place to think and look forward for how the Viksit Bharat could be made up. Friends, in our previous sessions, when we were listening about our
developers who are saying developers who would be coming and moving forward. So now this MSME REITs, which another 10 minutes have been given with, if we understand, all of us, the developers who are there since last years, the developers who would be coming in time to come, and the whole nation, all of them could be partnered together in development of this nation. Friends, if we see what REITs have brought in, REITs was a policy which was brought in US in year 1960, and today the situation is 96% of the real estate in US is being held by REITs. So the developers are definitely the owners of the real estate, but the small investor is also one of the partners of these developers. So how much big the amount of value it brings into the economy, that is the most important thing. In Japan, it brought in 2001. In Europe, it was introduced in 2003 and 2007. And there is a tremendous growth in the real estate, which we have seen in these markets. As on date, there are 893 REITs across world. And what about India? India, as on date, have 4 REITs which are listed and 5 REITs which have been registered. So you can understand how much the tremendous opportunity is there in the sector. Now, what have happened? How REITs in India have started? Way back in 2007, SEBI have came up with their regulation, and the first REITs was there in 2019. So it was almost 12 years where it took to come up with the first REITs, and the first REITs was of 4,750 crores. That was the size of the value. And today, as on date, we have 5 REITs which have been registered and 4 REITs which have been listed. Why I am talking so positive? Why I am seeing that it would be one of the game changer in our Viksit Bharat? This is because of all this. In 1990s, when the FDI came, we all thought India would be sold and nothing would be left of India, and again there would be some British Raj. But now with this FDI, how transformation have brought in, we have seen. Moving forward, RERA had came in place, then the GST, the Digital India. Now, after SEBI, which established in 1992, after 30 years of SEBI, all the regulations are so well placed and established. Now, the SEBI wants, the chairman of the SEBI, in her 15 days before board meeting, she told that I want that an investor who is having 250 rupees in his pocket should come in markets and invest. This is the small size which the SEBI is thinking over, where they want that the person, each and every person of the country gets involved in development, and the money which is there left in their cupboards or the FDRs, which is not been producing money as such in so much of the development as it should be used, that should come in the mainstream. So because of this, on 25th or 11/23, when the board meeting approved the mini REITs, that is primarily, as on date, there is a REIT size which is required is of 500 crores. That is, the asset size should be of 500 crores. But now, SEBI have came up with a consultation paper in May 2023, and in that consultation paper got an approval from the board meeting on 25/11/2023, wherein they have put in place 50 crores as the asset size. So now, if any of us is having an asset size of 50 crores, wherein the assets could be brought in as a small and medium REITs proposition. Again and again I am saying,
assets, assets, assets. But what assets would be qualified? If, as a developer, we are having an asset of a hospital, a hotel, a commercial property, a residential property, a data center, a warehouse, and it may be like we are having 5 different assets worth 10 crores each. Combined all together, we can come up with a REITs. So this much big strength this REIT product would be having. The asset which is being included. Now, if we just see what is this SME REITs, how it works, a brief summary of it, it would be in a formation of a trust. A trust needs to be set up. A trust needs to be registered with the Security and Exchange Board with the said regulations as they have brought in place and which are to be brought in place. There would be majorly 3 parties to it. That is a sponsor, an investment manager and a trust. All together would going to form and going to perform in the trust. The application would be done by a sponsor. Here, wherever I am using the word sponsor, sponsor is the developer. Developer is sponsoring his asset to the REITs. So, wherever the word sponsor is used, you may understand the owner of the property, the developer. So, this would be the structure. The SME REITs would be the formation which would be happening. The trust would be run by the trustees and the investment managers would be managing these investments. The units of these REITs would be held by the unit holders. And the beauty of this SPV is that many SPVs can come in these REITs and those SPVs can hold many assets. So, my dear friends, today I would going to request, this is a good opportunity where you all have gathered across the country. Find partners for yourself. If you say one of my developer friend is having an asset in Chennai and one of my friend is having an asset in Mumbai and one in Delhi, you all can come together and form a REITs for yourself. So this is what the strength this REITs can bring in. This REITs could be a platform to bring all of you together moving forward. Where your ideology meets, where your thoughts meet, you can think over in this manner also. So now, the sponsor have a set of regulations which it need to be followed. That is, he need to hold minimum 15% of its stakes for another 3 years. And later to 3 years, as the SEBI guidelines permit, he may dilute accordingly. So for first issue, if he thinks that he need to dilute 85% of its value, in the first issue also, they can come and dilute 85%. How this money could be used? I, as a developer, always wants that my holding, my lease rental properties should always remain with me. If some big stakeholder would going to come, I would going to dilute myself and he would going to take away my property or he would going to not obey me or he would going to create issues for me. In this manner, you can bring the small investors in this small and medium REITs with yourself and with a dilution of 85% of your value. Then the investment manager would be there who would be managing the investments. His net worth need to be 10 crore rupees. The scheme of the REITs would be listed at the stock exchange. It would be mandatory which need to be there. And as told to you, like 50 to 499 crores of the value could be there, which could be brought in for the listing. The beauty is, whatever earnings have been made, these earnings would be distributed at the end of the quarter to the tune of 95%. So, one of your investor who is coming and investing, he is getting a quarterly income with himself. And only 5% is to be retained. Rest 95% would be distributed. So, the investor would definitely be happy that
मैं जाता हूँ, एफडी करवाता हूँ, बैंक बोलता है कि मेरे को 5 साल का एफडी चाहिए, ब्याज चाहिए तो 5 साल बाद में आना. अगर आज, if I am today giving a yield of 6-7% and an yield of appreciation of capital asset, in totality 15 to 17% to any of the investor, they would always love to come and invest in an MS REITs rather than going to any FDR or investing in a gold or silver. They would always love to be. Many investors think that I want to invest in a real estate, but in my pocket, I am having only 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, 20 lakh rupees. I won't be able to do that. So they can do that now. They can diversify themselves. If they think that 10 lakhs to be kept and put it in Mysore, 10 lakhs property to be bought in Hooghly, and 10 lakh property is needed to buy in, say, Ahmedabad. They can now invest in these different REITs in these different cities, and they would be having a pan-India exposure for their investments, so that they might not be at a risk. Today, it's been said that Bangalore is having a risk of people who's there because the employment in Bangalore is now moving towards Hyderabad. So in these manners, the investment risk also reduces by any of the investors. So this is a small... Amit ji, can we... Only sir, 2 minutes more, Yeah. sorry. So this is a small flow chart where like we start from the REITs, creating a trust, then we get a SEBI registration for it. The trust is been trustees and the investment manager has been appointed by the sponsor, and the board and the trustees of the SM REITs have been registered. The rent generating assets need to be there in place, and it would be regulated through SEBI. Now, I have some of these taxation provisions which would be applicable on the managers, on the trustees, on the investors. So I'm skipping it because of the shortage of time. So I'm skipping all these taxation purpose. I would be requesting CREDAI to mail the presentation so that it would going to help all the members. So, yes, this is I would like to put in a place. As on date, there is a concept known as fractional ownership, wherein an investor comes, put in money in a fractional ownership in any of the property. Now, these fractional ownerships need to be converted to a small medium REITs as and when the regulations are in place. And why I am saying that the SM REITs are far more better than a fractional ownership platform. First of all, fractional ownership platform is not being recognized by the government of India. That's the reason they have now came up with the small medium REITs. There is a trust which is there formed in a SM REITs, but in a FOP there is a private company. So the type of patience which the investor have, that gets reduces because he does not have a liquidity in an FOP as compared to SM REITs. In addition, the value, the limit, there is no limit in an FOP, but in an REITs, there is a limit. So now, as I would stop here, thank you very much. Any questions? I would love to answer them. Thank you very much. Thank you so much, Amit ji. I think this is something we can keep talking about, and it's really, it seems like a great opportunity for smaller real estate players, which this NIS is actually targeted at for being able to kind of generate funds for their projects. Thank you. We'll come back to you, but I will have two other panelists. Rajnish ji, coming to you. I think as we understand, and I'll ask you straight, the biggest problem we have, Rajnish ji, real estate is never recognized as MSME. Because despite the fact that we are all available for we can do our Uddam registrations. When we see and when we go to take these benefits, many a times we feel that we are not getting the benefits. So I think
I think by actually getting a Uddam registration, we are no less equal to any other MSME industry, and we should be able to get those benefits. What are your views on that, and how do you think we can correct them? First of all, I'll thank Mr. Ghosal and the organizers of this grand event for inviting an MSME activist in such an August gathering where there are, till now, since morning, I have been hearing all big people on the stage. So they have given me the opportunity to share the stage with big people, even though they are not here. Most of them must have left by now. But I'm happy, my colleagues on the stage and my friends in the audience, they are the real MSMEs, and they are still waiting to listen the points raised by the people concerned with MSME. मैं आप लोगों की इजाज़त लूँगा घोषाल जी, मैं जरा हिंदी में बोलना चाहूँगा। जरूर सर, जरूर। क्योंकि जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको सोचना पड़ता है क्या वर्ड सोचूं, क्या बोलूं। नहीं, एकदम सर। हिंदी में बात दिल से निकलती है, और फिर ये बनारस है, ये राष्ट्रभाषा भी है हिंदी, तो बोलिए। अपनी भाषा में बात करने में मज़ा ही अलग आता है। तो थैंक यू फॉर अलाउइंग मी, क्योंकि जितने स्पीकर्स पहले थे सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो उनकी कई चीज़ें मेरे को भी समझ नहीं आई, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर, तो हमारी गुलाबी अंग्रेजी है तो कई बार समझ नहीं आती। तो इस करके थैंक्स, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा। आई एम स्टिल सी लॉट ऑफ बिग डिग्नेटरीज सिटिंग इन द फ्रंट रो, मिस्टर बोमन ईरानी सिटिंग, एंड कलकत्ता से जो भाई साहब आए हैं, और अभी मैं देख रहा था हमारे दिल्ली के गौड़ साहब भी बैठे थे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि MSMEs जो हैं मेरे, उनको 4 C's की ज़रूरत है। 4 C's में पहला है करेज। करेज होने के बिना आप MSME का शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जैसे है कि पैसे नहीं हैं, फंडिंग नहीं मिलती, ये नहीं होता, पहले डिस्करेजिंग चीज़ें पता लगती हैं। तो आप में करेज होना चाहिए। देखिए, गुरुजी बोलने वाले हैं इसके बाद, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं सिर्फ आपके टिकट के बेस पे ही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट चार्जिंग फॉर दैट। तो सी, सबसे पहले करेज ज़रूरी है, फिर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड सी इज़ कॉन्फिडेंस, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में दम है, मैं कर लूँगा। क्यों? हैंड होल्डिंग सब बाद में होती है, पहले आपका करेज आपको आगे लाता है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, जो आपने सोच लिया करिए। मेरे को एक बार एक हमारे गुरुजी ने कहा कि गोयनका जी लगे रहो मुन्ना भाई। कहते एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आप मंदिर जाते हैं तो एक भिखारी आपके पीछे पड़ जाता है, बाबा दे दे 10 रुपए, दे दे 5, अब नहीं देते, वो आपके पीछे पड़ा रहता है, आपकी गाड़ी तक आ जाता है, फाइनली आप 10 रुपए निकाल के दे देते। तो ये बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, और एक कन्विक्शन कि जो प्रोजेक्ट आपने सोचा उसमें आपको कन्विक्शन होनी चाहिए। ये 4 गुण MSMEs के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप में अपना स्वाभिमान होना चाहिए। हमारे MSMEs पहले ही अपने आप को थोड़ा डाउनग्रेड कर लेते हैं। वो भैया बड़े आदमी बने MSME से बड़े हुए हैं। धीरू भाई अंबानी भी शायद कभी MSME था, तो आप भी करोगे, आप भी बड़े हो जाओगे। तो आपके अपने दिल में कोई छोटापन या कमज़ोरी नहीं रखनी चाहिए। आई स्टार्टेड माई करियर, माई फादर वॉज एन एडवोकेट, like somebody was saying,
आई सेड आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस करना चाहूँ। उन्होंने मुझे LLB कराई है, मैं लॉ ग्रेजुएट। कहते बेटा प्रैक्टिस करो मेरी। मैं कहा नहीं जी मेरे को बिजनेस करना। कहते मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं अपने दम पे करूँगा। तो सर एक कन्विक्शन थी, कॉन्फिडेंस था और करेज था। मैंने किया, ठुक 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 करते करते आज देखो मैं आपकी स्टेज पे आया हूँ, कितने बड़ी जगह। इट्स नॉट दैट कि पैसा मेरे पास कितना है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे को ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने पता नहीं कहाँ से मेरे को सिलेक्ट किया, मेरे को फ़ोन किया, मेरे को बुलाया। तो ये कन्विक्शन और ये जो कॉन्फिडेंस है वो आप सब में बहुत ज़रूरी है। आप भी किसी दिन शालीमार बनोगे, कुछ और बन जाओगे। और ये शालीमार हूँ मैंने एक मोदी जी को स्लोगन दिया, चरखे से चंद्रयान। हमारी इकोनॉमी चरखे से शुरू हुई, आज चंद्रयान हमारे कंपोनेंट्स के बिना उड़ नहीं सकता। आज दुनिया के अमेरिका, फ्रांस, ये सब हमारे चंद्रयान में सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम MSMEs 6 गुना सस्ता उनको प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई दे आर कमिंग टू माई कंट्री। सो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। ये बड़ी बिल्डिंगें आपके बिना नहीं चल सकती। 99% ऑफ एंटरप्राइजेज इन दिस कंट्री आर MSMEs। ये CA भैया इसको एंडोर्स करेंगे। 90 मेरे को जो सूचना है, किसी लखनऊ में एक हुई थी प्रैक्टिशनर्स की कोई कॉन्फ्रेंस थी, दे हैड इनवाइटेड। उसी में किसी ने बताया था कि GST के डाटा के हिसाब से ओनली 90,000 कंपनीज आर अबव 250 करोड़, विच अमाउंट्स टू 0.30%। 99.7% आप लोग हैं। आप लोग इस देश को चलाते हैं। और अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है तो MSME ही बना सकते हैं। चाइना को बनाया MSMEs ने। सो in the opening remarks I just wanted to tell my brother sitting here कि आपके दम पे ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। यूपी की 1 ट्रिलियन भी आपके दम पे होगी। इस सोच के साथ आज यहाँ से जाइए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा घोषाल जी कि अभी कोई भाई कह रहे थे पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बन गया है। पहले मजदूर और इंडस्ट्रियलिस्ट की लड़ाई होती थी, आज कोलैबोरेटिव है। एक दूसरे के वो कंपटीटर नहीं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। उसी तरह मैं आज चाहूँगा कि क्रेडाई एक मिशन चलाए कि जितने बड़े बिल्डर्स हैं और जितने हमारे छोटे हैं उनका एक डाटा तैयार करें, और जो छोटे मिडिल लेवल के हैं और हैं वो उनको बड़े उनसे सप्लाई लें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इकोसिस्टम विद इन क्रेडाई अवेलेबल है। तो ये मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए। अब आगे बात जो आपने कही, देखिए मैं बीजेपी का नेशनल कन्वीनर था MSME सेल का। 2014 में मोदी जी आए तो मुझे लगा कि MSME शुरू ही 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले तो हमारी पिटाई होती थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती थी। बैंक में जाओ तो चला चपड़ासी हमें गेट पर रोक देता था। आज बैंक का मैनेजर कहो भाई मैं MSME हूँ, खड़ा होता है, चाय भी पिलाता है। ये आज आपकी पावर खड़ी हुई है। मोदी जी ने 2014 में इस चीज़ को एहसास किया। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क जा रहे थे तो मैंने PMO में कहा, मैं कहा जी वो अडानी अंबानी सब जा रहे हैं, MSME कहाँ है? तो मैं लड़ भिड़ के उनके साथ पहुंच गया अमेरिका। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को टाइम मिल गया, बोले गोयनका जी आप एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करो और उस पर MSME के लिए काम करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। वो आदमी 2014 में ये चीज़ महसूस कर रहा था कि आपकी देश को कितनी ज़रूरत है। दूसरा हमने एक स्लोगन दिया, ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर।
इस देश में हर युवा को नौकरी चाहिए, नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो मोदी जी ने ये भी एक स्लोगन एक्सेप्ट किया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो। जितने मेरे भाई यहाँ यंग हैं जो अभी काम सीखना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, वो इसी सेक्टर में काम करें। देखिए, मैं इस सेक्टर में नहीं था। जब मैंने करियर शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहीं से कर आके वेस्टर्न टीवी की एजेंसी ले ली। पर मैंने देखा पैसा रियल एस्टेट में है, तो मैंने माँ से लिए और लिए, तो मैंने एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए। कोई कोठी बना रहा था, मैं कहा मेरे को भी जोड़ ले। तो सर मेरी भी रिश्तेदारी है इस फटर्निटी के साथ, मैं भी करता हूँ। उसके बाद मैंने अपने बेटे को फर्नीचर और इंटीरियर्स का काम शुरू कराया। तो इट्स ए वेरी प्रॉमिसिंग लाइन। आप सब लोग इसमें और आगे बढ़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस इन दिस सेक्टर एंड पर्टिकुलरली फॉर, अभी सुबह मैं सुन रहा था 80% 2, 3 और 4 ईयर में से आते हैं हमारे बिल्डर्स, यू नो। और अब वक्त बदल गया है। मैंने देखा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स एंड मल्टीनेशनल, दे आर डाइवर्टिंग टू 2, 3, 4 टियर सिटीज। तो देर इज ए ट्रमेंडस बिजनेस अवेलेबल इन 2, 3, 4 टियर सिटीज। आप लोग वहाँ करें और ये बड़े बड़े बिल्डर आपके पीछे फिरें कि भैया हमारे साथ मिलो, हमारे साथ काम करो। मैं अभी घोषाल जी से बात कर रहा था, आपने मेरे को बुलाया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपके लिए और भाइयों के लिए क्या कर सकूं। I am working and my forum is working as catalyst and conduit between the government and the MSME sector. So I offer my services for my brethren and my CREDAI organization. आज तो हम मिल लिए, चाय पियेंगे, आपका डिनर खाएंगे, चले जाएंगे, पर I promise I am MSME, I will still continue to be your friend and your person who can coordinate whenever required between government and this forum. आप देखें अभी वो लगभग 30 MOUs हैं हमारे। कई बार क्या होता है, कोई अफसर मानता नहीं है, वो जी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहलवाओ, वहाँ से कहलाओ। मैं क्यों कहलाएं भाई, हमारा राइट बनता है। अगले दिन मैं वो 30 चैप्टर्स जो है MOU हैं, मैं उनसे 20-25 मेल्स करा देता हूँ, तो वो घबरा जाता है, काम होता है। तो कलेक्टिवनेस से ये काम है, और क्रेडाई तो अपने आप में बहुत सक्षम है। हम तो छोटे से MSME हैं, आप हमें जोड़ेंगे तो हमारा ही इसमें क्रेडिट बनेगा, बट वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, आपको नहीं मिल रहा है बेनिफिट, और वो बेनिफिट आपको मिले इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। और ही हैज़ वेरी नाइसली ऑफर्ड अस, सेड दैट बस हमको एक काम ऐसा दीजिए जो आपको चाहिए और मैं आपको करा के दिखाऊंगा MSME की ताकत। इसके लिए एक बड़ा हाथ सब लोग मिलके ना इनको थोड़ी सी थैंक यू देना चाहिए हमको। He has also proposed an MOU which we will discuss internally within the system and we can sign with MSME forum, which we will take forward। हमारी जो तकलीफें हैं MSME की, जो बेनिफिट्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, ये सारे चीज गोयंका जी से बात करके आज गोयंका जी की बैकग्राउंड आपने सुने, ये पूरी अपनी जिंदगी MSME इकोसिस्टम को दे चुके हैं। थैंक यू सो मच। I'll just take one more minute। हमने 2017 में ही बनारस में बहुत बड़ा MSME का चैप्टर खोला था और प्रोग्राम किया था। हमारे यहाँ के हेड मनोज जी, जस्ट आप खड़े हो जाएं ताकि इनको लगे कि मेरे जाने के बाद भी किसी की गिरबान ये पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छा। मनोज शाह जी हमारे यहाँ के चैप्टर के हेड हैं। इन्होंने 2017 में वो कार्यक्रम कराया था BHU के किसी हॉल में। मेरा सबसे पहला सबसे सफल प्रोग्राम, खचाखच 500-700 लोग भरे हुए थे हॉल में, और मेरे को तब पता लगा कि बनारस के लोगों में
एमएसएमई के प्रति वो है, और तब से हमारा लगाव है। और उसके बाद, उससे पहले एक्चुअली लगा हुआ मोदी जी के चुनाव में मैं पहली बार यहाँ 15-20 दिन रहा। तो बनारस इज वेरी क्लोज टू अस एंड CREDAI will be close to us henceforth. Absolutely. We are there. Thank you so much for your very encouraging words. बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी हैं DGM from SBI and हमारे सबसे बड़े तकलीफ तो पैसे ही है ना। पैसे मिलते नहीं और MSME की बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं शर्मा जी। मैं आपको ये प्रश्न इसलिए करता हूँ कि हम लोग को सबको लगता है जो बेनिफिट मिलना चाहिए MSME और रियल एस्टेट में एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, और बैंकिंग सेक्टर हमको परसीव करते हैं कि आप तो रियल एस्टेट वाले MSME वाले नहीं हैं, और आप MSME की पोर्टफोलियो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कितना सच है और कैसे हम इस जो मिथ है, इस मिथ को तोड़ के MSME की बेनिफिट्स सारे हमारे रियल एस्टेट के भाइयों को दिला सकते हैं। Well, before I begin, warm greetings from State Bank of India. MSME के बारे में अभी सर ने जो बोला है और उस पर मैं कोई अभी बात बोलूं, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दे दूं MSME के बारे में। MSME जो है, एज वी ऑल नो बाय डेफिनेशन, इट इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो micro, small and medium, all these three type of industries have different type of requirements. तो हमारा जो फाइनेंसिंग पैटर्न है बेसिकली वो तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम लोगों ने इस फाइनेंसिंग पैटर्न को अपनी ब्रांचेस में, जैसे अभी आप लोगों का टॉपिक है री इमेजिनिंग, पिछले 3-4 साल में हमने भी री इमेजिनिंग बहुत सारी की है। सो वी हैव गॉट नाउ अ डिफरेंट सेटअप फॉर कस्टमर्स फ्रॉम 50 lakhs to 100 crores. For those branches, we call them specialized SME branches. वो SME specialized branches सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हैं. It is available in लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, all the major centers. पर हमारे जो छोटे सेंटर हैं, जैसे अगर यूपी में आप देखें तो बलिया में भी SME ब्रांच है, फतेहपुर में भी SME ब्रांच है, एंड प्रतापगढ़ में SME ब्रांच है. At all the places we have got specialized SME branches, जहाँ पर लोग सिर्फ SME को देखते हैं. There is no general banking in those branches. हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इस बात को देखा है कि कम से कम 1 या 2 SME ब्रांचेस हम दें, और पिछले 3 साल में आई एम प्राउड टू से कि पूरे यूपी में वी हैव गॉट ओपन मोर देन 125 स्पेशलाइज्ड SME ब्रांचेस विच आर केटरिंग टू SME ओनली एंड नथिंग एल्स. इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में सिर्फ ब्रांचेस खोलने से पूरा काम नहीं होता है. These branches are working on a relationship based model. So in relationship based model में क्या है कि we have got a team of relationship managers, जहाँ एक relationship manager अपनी टीम के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 यूनिट्स को देखता है. So he has got ample time कि वो अपने यूनिट्स के बारे में समझ सके, अपने यूनिट्स की बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. एंड इट इज़ नॉट ओनली द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बट ऑल सॉर्ट ऑफ बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स. बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एट वन स्टॉप बैंकिंग जो है वो उन कस्टमर्स के लिए हम ऑफर करते हैं. देन फ्रॉम मोर देन 50 lakhs टू लेस देन 50 lakhs वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स. क्योंकि लेस देन 50 lakhs में बल्क बहुत है, हमारे लिए शायद रिलेशनशिप मैनेजर लेवल देना पॉसिबल नहीं है जितना बड़ा वॉल्यूम हमारा बिजनेस का है. सो वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स. यूपी में भी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, जहां पर कि किसी भी ब्रांच में अगर कोई भी व्यक्ति 50 लाख से नीचे के लोन के लिए जाता है तो वह एप्लीकेशन जो है उन प्रोसेसिंग सेंटर्स को प्रोसेस की जाती है, मतलब फॉरवर्ड की जाती है, और वहां से उसका क्विक प्रोसेसिंग होता है. सो दिस इज हाउ वी आर केटरिंग टू द नीड्स ऑफ MSME. एंड देन सम डिजिटल इनोवेशन हैज ऑल्सो टेकन प्लेस इन द लास्ट 2 years. अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस रूल इंजन. दैट इज़ बेसिकली AI बेस्ड टेक्नोलॉजी. आज के टाइम में सब लोग AI की बात कर रहे हैं. तो अप टू 50 lakhs व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज दैट यू डोंट हैव टू सबमिट द बैलेंस शीट, यू डोंट हैव टू सबमिट द अदर कम्बरसम पेपर टू द बैंक्स. आपको अपना GST जो है उसका
डिटेल्स देने हैं बेस्ड अपॉन योर जीएसटी डिटेल्स एंड योर इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड योर अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक का जो एआई सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए एक लिमिट क्रिएट करता है एंड वो लिमिट आपकी अगले 2 घंटे में सैंक्शन होकर आपके हाथ में दे दी जाती है। ये आपके शहर बनारस का ही कल एक एग्जाम्पल मेरी जो टीम है उसने मुझे दिया यहाँ पर, जो हमारी प्रोसेसिंग टीम है। अ पर्सन हैड कम, वो शायद अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते थे। देन ही वाज आस्क्ड कि आप अपनी एफडी के अगेंस्ट में क्यों लोन ले रहे हैं, क्यों अपनी एफडी को ख़राब कर रहे हैं? तो ही सेड कि नहीं, अदरवाइज आपके बैंक का प्रोसेस बहुत कम्बरसम है और शायद हम इस लोन को नहीं ले पाएंगे। देन व्हाट आवर टीम डिड वाज कि उनको बिजनेस रूल इंजन जो हमारा नया प्रोडक्ट है उससे वाकिफ़ कराया गया एंड बेस्ड अपॉन हिज जीएसटी रिटर्न्स, हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स, हिज अकाउंट स्टेटमेंट, a loan was sanctioned within 2 hours. So this is what the digital technology is doing. Up to 50 lakhs, this has been introduced just now, a month back, but we are planning to extend it up to 5 crores. So up to 5 crores of finance, शायद 1 अप्रैल से State Bank of India will not ask for any balance sheet, for any cumbersome statements, just based upon your GST statements, based upon your IT and your account statement, the AI product which the State Bank of India has got, they'll give you a limit. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सैंक्शन करने वाले की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज सिस्टम एक लिमिट दे रहा है, तो उसमें वो डर भी खत्म हो गया। तो ईज ऑफ बिजनेस जो है उसके लिए एसबीआई बहुत कुछ कर रहा है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। सर, अब आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बिल्डर्स, तो देखिए इसमें 2 कैच हैं। बिल्डर्स आर पार्ट ऑफ एमएसएमई, फाइन, बट बिल्डर्स को एक स्पेसिफिक टाइप के, एक स्पेशल टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक स्पेशल टाइप के स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर एमएसएमईज़ के साथ में क्लब करके अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स को असेस किया जाता है तब वो बिज़नेस मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्डर्स का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो उनका कैश बेस्ड है, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ उसके ऊपर फाइनेंस कर दें, मेरे कैश का रिक्वायरमेंट आज की डेट में कितना होगा उसमें मेरा मार्जिन निकाल के बाकी मुझे फाइनेंस कर दीजिए। सो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ मॉडल वी आर डूइंग इट, और उस मॉडल के ऊपर बेस करके हम जो है फाइनेंसिंग करते हैं। और बिल्डर फाइनेंस अगेन हमारी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं, दीज आर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 ब्रांचेज हैं, एंड इन प्लेसेस लाइक लखनऊ, बनारस एंड आई वुड से कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, we have got 3, 4, 5 specialized branches। एकदम लोग रिलेशनशिप के ऊपर बेस करके काम करते हैं, खाली हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि उनके पास में बहुत भीड़ है। आप उन ब्रांचेस में जाएंगे, बहुत ही नीश टाइप का एटमॉस्फेयर और बहुत ही डिसेंट वर्किंग एमएसएमई के एक्सपर्ट्स हैं वो, ऐसे लोग जिनको हर साल ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको हर साल बैंक के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। और मूडीज़ का नाम शायद आपने सुना होगा, हर साल मूडीज़ का सर्टिफिकेशन लेना होता है एमएसएमई में कंटिन्यू करने के लिए। तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्कफोर्स वी हैव डेवलप्ड, एंड आई थिंक फॉर बिल्डर्स जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं हमारी, वो बहुत अच्छा काम करेगी। थैंक यू। मेरा प्रश्न का रिक्वायरमेंट ये था कि एमएसएमई की बहुत सारी बेनिफिट है जो एमएसएमई फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग एडवांस के साथ साथ मिलता है, कुछ कहीं कहीं इंटरेस्ट कम लगती है एट्सेट्रा, वो हम देखते हैं कि बिल्डर्स को हमेशा मिलते नहीं है। बट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम वी विल गो बैक विद वन लास्ट question to everybody because we have some other sessions also coming. So I will request to keep this brief and just take 2 minutes from each of you to have a closing remark. तो रजनीश जी आप पहले बोलेंगे तो जरूर। मैं अपने शर्मा जी ने जो कहा, देखिए हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम कंसल्टेंट भी हैं, हम अकाउंटेंट भी हैं, वी आर एवरीथिंग, वन मैन आर्मी हैं हम। तो सर व्हाई नॉट, अगर मान लीजिए कि एक बड़े बिल्डर को एमएसएमई की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो 10 एमएसएमईज का कंसोर्टियम बनाए, एक तो उनको काम देगा और वो बेनिफिट्स अपने वो जो पार्टनर्स हैं उनको मिलेंगे, तो वहाँ से उसका बेनिफिट लेना उनको दिलवाए और ले ले। अब एक मैन्युफैक्चरर कोई सप्लायर है, उसको एमएसएमई के बेनिफिट मिलेंगे, अगर वो उसका पार्टनर है तो वो उसका माल ले ले और उसको करे। उसने हमारे शर्मा जी ने जो बोले ना, वो हमारी प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम मैं तो दर्शाना चाह रहा था। भारतवर्ष मेरे से 1 मिनट सुन लीजिए, मैं बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। शर्मा जी एक बैंकर की पर्सपेक्टिव से वो रियल एस्टेट और एमएसएमई में एक फर्क करता है,
और उनको ये लगता है कि जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर की वो एमएसएमई सेक्टर से डिफरेंट है, सो वी विल हैव टू वर्क ऑन इट डिफरेंटली। हम लोग चाहते हैं ये दोनों चीज मर्ज हो और एमएसएमई की इकोसिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, जो सरकार इसको आगे लेके चाहते हैं कि वी शुड कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द जीडीपी। ये प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है कि आप आज 37-38% पे है और ये 50% होने चाहिए। ये तभी होगा कि रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, अध्यक्ष साहब ने सुबह बोले हैं कि वी कंट्रीब्यूट नॉट 8% टू द जीडीपी, इफ यू टेक एवरीथिंग वी कंट्रीब्यूट 47% टू द जीडीपी, बिना रियल एस्टेट को लिए हुए। और एमएसएमई की इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट को जोड़ना बहुत जरूरी है। बट एनीवे, आई थिंक वी हैव टू काइंड ऑफ, गोयंका जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी नीड टू कैरी ऑन बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स। तो मैं लास्ट 2 स्टेटमेंट ये दोनों से लेना चाहूंगा आपकी। शर्मा जी, आई थिंक आपको ऐसा 2 मिनट में मैंने जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप किस तरीके से एमएसएमई काम कर रहे हैं, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप ये दरार कब टूटेगी आपको लगता है? कब रियल एस्टेट वाले और एमएसएमई वाले को आप वो एसएमई ब्रांचेस से लोन दे पाएंगे? सर, हम अपने जितने भी रियल एस्टेट के हमारे पार्टनर्स हैं उनको एमएसएमई ब्रांचेस से ही लोन दे रहे हैं। ये 50 लाख से ऊपर जो हमारी ब्रांचेस, स्पेशलाइज एसएमई ब्रांचेस खुली हैं, उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स ही आपका जो है सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। और इवन यहाँ पर भी जितने लोग हैं, और अभी मैं आज जब यहाँ अंदर एंटर कर रहा था तो मेरी टीम ने मुझे 2-3 लोगों से मिलवाया जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर फाइनेंस हुए हैं, तो दे आर ऑल बीइंग डन बाय द स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस ओनली। वो उन ब्रांचेस में जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग कर रहे हैं सर। तो हम ये ऐलान कर सकते हैं कि यहाँ सारे जो डेवलपर भाई बंधु बैठे हैं, आप एसबीआई की उस ब्रांचेस में जाइए, हाँ सर, और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में जाइए और आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है आप वहां उसको दीजिए और यू विल बी सर्विस्ड फ्रॉम दोस ब्रांचेस। ये बोल सकते हैं ना? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर। हमारी जो भी स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में जैसे 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज अक्रॉस इंडिया इज द सेम पॉलिसी। और स्पेशलिस्ट वहाँ एमएसएमई के बैठे हुए हैं, उनके पास में फुर्सत है। दीज आर नॉट रूटीन ब्रांचेस जहाँ रश होता है, जहाँ सेविंग्स अकाउंट भी खुल रहा है और बहुत सारे और भी काम हो रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, गोयंका जी फॉर योर फाइनल रिमार्क्स बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थोड़ा सा पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हूँ तो माइक जरा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक मैं सोल्यूशन, आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज प्रॉब्लम्स तो कई हैं, सॉल्यूशंस उसके ढूंढने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में भी कई चीज़ों पर पंडित जी कुछ बोलते हैं, फिर वो रास्ता ही बता देते हैं। हमें एक बैंक ने 50 करोड़ का मैंडेट दिया है कि जी एमएसएमई आपके मेंबर्स, उनको आप फंडिंग के लिए 50 करोड़ का मैंडेट है, आप उसकी सारी स्क्रूटनी करो, अप्रूवल करके आप अपने कवरिंग लेटर के साथ हमारे को भेज दो। 80% इट विल बी अप्रूव, 20% जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो रादर खुश थे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचेगी। तो इस टाइप का इकोसिस्टम कोई बन सकता है कि हम अपने मेंबर्स को बताएं भी इस तरह से बनाओ और इस तरह से वी कैन वर्क फॉर देम। यस, थैंक यू वेरी मच। माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज टू अमित जी। ये जो एसएमई रीट की इकोसिस्टम के बारे में आप डिस्कस किए हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट बिकॉज एज आई सेड ओवर द पीरियड ओनली 9 REITs have actually 4 REITs have got listed और 5 और REIT 5 रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड है जिसमें काम नहीं हुई है। तो एक्चुअली टिपिकली इतना साल की जो मेहनत है उसमें खाली 4 ही REIT आई है बिकॉज प्रोबेबली ऑफ द साइज एंड द स्केल रिक्वायरमेंट। सो नाउ विद दिस चेंज where you say the asset size can be 50, it can be combined between various projects and all. How simple, मैंने बड़ी सिंपल, अब 1 मिनट में हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। हम लोगों को लगता है ये बहुत सारे पेपर वर्क चाहिए, बहुत सारे काम चाहिए। हाउ सिंपल इज इट? आपको कोई ये काम देगा तो आप कितना दिन में ये काम करा के दीजिएगा? सो मैं सिर्फ जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर है वो 3 डेटा से चालू करता हूँ। पहला डेटा, आज के दिन रीट्स के सिर्फ 2 लाख इन्वेस्टर हैं हिंदुस्तान में, एज कंपेयर टू 3 करोड़ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स। आज के दिन जो एसेट साइज रखी हुई है वो है 10 लाख करोड़ की, जो कि रीट्स के अंदर आने के लिए एलिजिबल है। अगर ये 10 लाख करोड़ अगर सिस्टम में आ जाते हैं रीट्स के माध्यम से और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो रीट्स में आ जाता है, तो मेरे को लगता है
कि मेरे को कोई बैंक की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो 140 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की, वो मेरे साथ नेशन बिल्डिंग के अंदर मेरे साथ जुड़ जाएगी। मैं नेशन बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो मेरे साथ कंट्रीब्यूशन में जुड़ जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ माय थॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ MS REITs। जहाँ तक काम की बात है, definitely it would not going to take more than 6 months end-to-end first process of scrutining, starting of scrutining, understanding the asset and getting it listed to the stock exchange. And with the listing of the stock exchange, we would not be exposed to the retail investor or the investors in India. We would be exposed to the investors, foreign investors across the world. अगर 9 दिसंबर को एक गिफ्ट सिटी में प्रोग्राम हुआ था, गिफ्ट सिटी इज अ सिटी, ड्रीम सिटी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, एंड देयर ही हैड गिवन अ कमेंट, इट्स एन फिगर गिवन बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, दैट अब्रॉड देयर इज अ $70 trillion money which is lying of the investor who are old age of their home. वो लोग जापान जैसी कंट्री में बैठे हैं जहां पे उनको रिटर्न नहीं मिलता है, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। $70 ट्रिलियन में से अगर $2 ट्रिलियन भी ऐसा गिफ्ट सिटी से अगर मेरे देश के अंदर मेरे इन 10 लाख करोड़ की MS REITs को आ जाता है, तो दैट वुड बी अ बिग गेम चेंजर, और अपन को कोई डेवलप्ड कंट्री होने से रोक नहीं पाएगा। ग्रेट, थैंक यू। आई थिंक ऑन दिस सुपर पॉजिटिव नोट, हमारे तो फिर कोई पैसे की कमी नहीं होना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि फ्रॉम व्हाटएवर ऑन दिस सुपर पॉजिटिव नोट आई थिंक आई विल एंड दिस सेशन। आई विल रिक्वेस्ट मी टू घोसाल जी एक इनविटेशन देना है, एक इनविटेशन देना आपको। हाँ जी जरूर। 30 जनवरी को हमारे फोरम का 32nd चैप्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में खुल रहा है। तो आप तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हम तो छोटे से लोग हैं। रेसिप्रोकेशन में आई इनवाइट योर डेलीगेशन टू Bhubaneswar to participate in that program of MSME. There will be roughly around 700 MSMEs, and your members can benefit a lot. And we will send a reciprocal invitation, providing all the things you have provided to me. Thank you. Thank you. हम लोग बहुत आभारी है। Thank you very much. Thank you, and to thank our speakers, I request Mr. Pramod Khairnath, inviting Mr. Pradeep Raikar and Mr. Ravi Jacob to kindly join me here in presenting the mementos. So towards empowering of the MSMEs, this was a session. They're playing an important role in how the various departments, whether it is the MSME development body, which is facilitating and strengthening the MSME, being their voice, how the bankers can extend more financial aid, and also advice coming towards the REITs in this session. Ladies and gentlemen, just a reminder of the last session which we are going to be having of Shri Gaur Gopal Das, the motivational speaker, the online monk who's going to be addressing us. That's going to be the last session of the day. We then are going to be moving to Taj Ganges for dinner and a live band. Tomorrow morning we have 6 a.m. Your vehicles are going to be taking you for the temple darshan. 6 बजे आप अपने लॉबी में तैयार मिलें और वहाँ से आपको टेम्पल दर्शन, और उसके बाद हम अपने सेशंस यहाँ पर आरंभ करेंगे 10 बजे. So that's for tomorrow morning. And now we have